Now, fourth one is religion. In most parts of the world, nation shares a national religion or religious heritage, as Israeli is to be Jewish, Pakistani is to be Muslims. Even in an immigrant nation such as United States, some Americans suffer from usually high level of ethnocentricity, seeing a kind of Protestant Christianity as only American religion, with Islam and even Judaism sometimes viewed as the foreign faith. तो जो रिलीजन होता है इसका भी कहीं ना कहीं पर पार्ट होता है नेशनहुड में, क्योंकि हम जैसे अपनी अगर एग्ज़ाम्पल लें तो पाकिस्तान was created just for the sake of religion. That being in India, we have religious differences with that of Hindus, so that we could not live with each other. और सिमिलरली हम अगर इसराइल की स्टेट को देखें तो वो भी टोटली जो है वो ज्यूइश रिलीजन की बेस पर सिचुएटेड है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो रिलीजन है उसका भी नेशनहुड में बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। इवन अगर हम अमेरिका में भी देखें तो वहाँ पर जो प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिटी है उसे एक रिलीजन समझा जाता है, और जो बाकी रिलीजन्स हैं उनको फॉरेन फेथ कंसिडर किया जाता है। तो रिलीजन का हर जगह पे इम्पोर्टेंट रोल होता है, बिकॉज रिलीजन इज़ आवर पार्ट ऑफ कल्चर, इट इज़ आवर वे ऑफ लाइफ, and most of the nations have experienced common past records, so that's why they are based on the religion. Third one, fifth one is territory. Territory is most important for a nation state. Most people identify with their national territory in very special and emotional way. People can become very passionate about their national homelands. कि इंसान जहाँ पर पैदा होता है उसे वहाँ से उसकी इमोशनल अटैचमेंट होती है। ठीक है, जो पैट्रियटिज्म होता है वो टेरिटरी की बेस पर होती है कि वी आर अ नेशन एंड वी आर born in this territory, this is our nation, this territory represent us, so we can do anything for the sake of our nation, and that nation is the territory we are born and the people living in it. In World War II, Italian armed forces performed liturgically when Mussolini tried to conquer Greece and Egypt, creating myth that Italians were timid warriors. But when Germany turned against its formerly ally in 1943 and occupied the Italian peninsula, the Italian partisans fought and died heroically in the defense of वो एक कल्चर के अंदर रह रहे हों और वो एक नेशनल कल्चर को फॉलो कर रहे हों, एज़ उनका नेशनल कल्चर जो भी है, उनकी ड्रेसिंग है, उनकी लैंग्वेज है, या उनके नेशनल कल्चर में जो भी उनके नेशनल सिंबल्स हैं वो उन सब को फॉलो कर रहे हों, बट दे आर बिलोंगिंग टू डिफरेंट रिलीजन। ये भी हो सकता है कि उनका रिलीजन डिफरेंट हो। ठीक, और इस तरह से ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं जिनमें ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, फ्रॉम एरिया टू एरिया वेरी करते हैं, बट यूजुअली ये जो 6 इंग्रेडिएंट्स हैं दे फॉर्म अ नेशन। So this is our conclusion. It is very simple that कि कुछ नेशंस ऐसी होती हैं जहाँ पर उनकी कॉमन टेरिटरी भी होती है, उनकी लैंग्वेज भी सेम होती है, वो सारे नेशनल कल्चर को, नेशनल सिंबल्स को फॉलो कर रहे होते हैं, बट उनका रिलीजन सेम नहीं होता। और बाज़ दफ़ा ऐसे भी होता है कि उनकी जो इमिग्रेंट सोसाइटीज़ हैं वहाँ पर किनशिप नहीं होती, और बाज़ दफ़ा ऐसे भी होता है कि एक एथनिक ग्रुप होता है जिसकी लैंग्वेज भी सेम हो, जिसका रिलीजन और कल्चर भी सेम हो, बट उनकी टेरिटरी कॉमन नहीं होती। तो दीज आर सम ऑफ द कॉम्प्लिकेशंस, बट यूजुअली these ingredients, that is language, kinship, national culture, customs and traditions, religion, territory and national self-identification, these form the nation. This is just like the concept of nationalism. As I told you that nationalism is feeling and consciousness of being a nation, or feeling and consciousness of being a nation. It means that we are identifying us and we are connecting us with a specific nation. तो ये जो सेल्फ आइडेंटिफिकेशन होती है कि जब हम अपने आप को किसी एक नेशन से आइडेंटिफाई करते हैं तो इसका नेशन बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इट इज़ लिंक्ड विद नेशनलिज्म। सो
these are the important ingredients in formation of nation. Now, what is the conclusion of all this um, topic, that is nation? We have studied that what is nation, what is nation state, what is sovereign nation state, and what are ingredients of nation state. Now, not all the national groups will have all the six characteristics. As we move from country to country, there are boundless complications. ये सिक्स इंग्रेडिएंट्स ये नेशन बनाते हैं, लेकिन जैसे हम कंट्री टू कंट्री मूव करते हैं तो ये वहाँ पर कुछ कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, जिसमें ये सारे के सारे जो सिक्स इंग्रेडिएंट्स हैं ये पूरे नहीं उतरते। जैसे मैंने आपको बताया कि जो किनशिप है वो इमिग्रेंट सोसाइटीज़ में पूरा नहीं उतरता, क्योंकि दे आर बिलोंगिंग टू डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स, बट ऑन द बेस ऑफ टेरिटरी दे आर one nation. But there, but it will help enormously as we move through the material to follow. If you can remember that when social scientists talk about a sovereign state, they are falling on political entity, its sovereign territory and its independent government. कि जब जो साइंटिस्ट हैं वो नेशन की बात करते हैं तो वो क्या देखते हैं, उसमें एक सॉवरेन स्टेट हो एंड दे आर फोकसिंग पॉलिटिकल एंटिटी हो या सॉवरेन टेरिटरी हो और उसकी इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट हो. व्हेन सोशल साइंटिस्ट टॉक्स अबाउट अ नेशन दे आर डिस्कसिंग एन एथनिक ग्रुप. एज सच वो एक एथनिक ग्रुप की बात भी करते हैं, फिर वो एक इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट की बात भी करते हैं, और वो जो है एक सॉवरेन टेरिटरी की बात भी करते हैं. दे आर they are discussing the ethnic group that may or may not be organized into a sovereign state but share all the most of the characteristics, that is language, sense of kinship, national culture, religion, emotional identification with a given territory and sense of national self identification. कि हो सकता है कि जो एक एथनिक ग्रुप हो उसकी लैंग्वेज भी कॉमन हो, उसका रिलीजन भी कॉमन हो, उसका कल्चर भी कॉमन हो, लेकिन उनकी टेरिटरी कॉमन ना हो एज मुस्लिम नेशंस. ठीक. और ये भी हो सकता है कि एक नेशन हो वो उनकी लैंग्वेज भी कॉमन हो, उनकी टेरिटरी कॉमन हो, वो एक कल्चर के अंदर रह रहे हों और वो एक नेशनल कल्चर को फॉलो कर रहे हों. एज उनका नेशनल कल्चर जो भी है, उनकी ड्रेसिंग है, उनकी लैंग्वेज है. In 1943 and occupied the Italian peninsula, the Italian partisans fought and died heroically in the defense of La Bella Italia, the beautiful Italy, as Pakistan gave defense to its territory in 1965 war. कि जब टेरिटरी पर आती है तो जैसे हम देख सकते हैं कि वर्ल्ड वॉर सेकंड में क्या हुआ था कि जब इटली मैसोलिनी ने कंकर किया था ग्रीस को एंड इजिप्ट को, ये मिथ बना लिया था कि तब ये मिथ बना हुआ था कि जो इटालियंस हैं वो टिमिड वॉरियर्स हैं. लेकिन जब जर्मनी ने इसके अगेंस्ट हुआ और इटालियन पेनिनसुला के ऊपर अटैक किया, उसको ऑक्यूपाई किया, तो तब जो इटालियन पार्टीजन्स थे, पार्टीजन्स मीन दैट मिलिट्री फोर्स फॉर्म टू अपोज कंट्रोल ऑफ एन एरिया बाय अ फॉरेन पावर. कि जब एक फॉरेन पावर किसी एरिया को कैप्चर कर लेती है तो उसको उसकी का ऑक्यूपेशन छुड़ाने के लिए जो फोर्स बनाई जाती है स्टेट के अंदर, वो क्या होती है, वो पार्टीजन होती है. तो इटालियन पार्टीजन जब बनी तो उन्होंने हीरोइकली वो हीरोज़ की तरह लड़े वहाँ पर और अपने जो इटली है उसको सेव किया. दिस इज़ बिकॉज ऑफ टेरिटरी. देयर टेरिटरी इटली, दे वर वन नेशन जस्ट बिकॉज ऑन द बेस ऑफ टेरिटरी. एज जर्मन्स आर द नेशन ऑन बेस ऑफ टेरिटरी, अमेरिकन्स आर द नेशन ऑन बेस ऑफ टेरिटरी, फ्रेंच आर द नेशन on base of territory. We Pakistanis are one nation on base of territory. And similarly 1965 में जब हम पर अटैक हुआ तो हमने पूरा डिफेंस दिया अपनी टेरिटरी को, because it is the part of our nation, because our nation is just because of the territory we are living. If there is no territory, there would be no nation. And the last one is national self-identification. It means what is the self-identification? It means that personal and emotional conviction that you are a member of given nation. self-identification ये है कि जब हम अपने आप को एक आइडेंटिटी देते हैं एज अ नेशन, तो ये हमारी सेल्फ आइडेंटिफिकेशन होती है कि हम एक नेशन से बिलोंग करते हैं.
So this is our self-identification. As our self-identification is that we are Pakistanis. Most of us group up with a clear sense of nationhood. Frenchmen feel French. People of US feels Americans. Germany as Germans. England as English. To be a member of a real nation is to be consciously aware of participating in its national culture in a clear, uncomplicated and स्पॉन्टेनियस फैशन. तो क्या है कि जब हम एक टेरिटरी में रहते हैं और एक कॉमन लैंग्वेज हम फॉलो करते हैं, एक कॉमन रिलीजन फॉलो करते हैं या कॉमन कल्चर या ट्रेडिशंस फॉलो करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम अपने आप को रिगार्ड करते हैं दैट वी आर अ नेशन. दिस इज़ जस्ट लाइक द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनलिज्म. एज आई टोल्ड